Okay, so type of matrices. Very simple it is. अलग अलग प्रकार के मैट्रिसेस होते हैं. What the hell? हाँ, अलग अलग टाइप के मैट्रिसेस होते हैं. The very first type of matrices is row matrix. What row matrix is? Nothing but what row matrix is a matrix in which there is only and only one row. Such kind of matrix is known as row matrix. In general, if I want to write is A 1 1 A 1 2 and so on up to A1n. Such matrix in which the order is in this form 1 by n. Order is of 1 by n. Such matrix is known as a row matrix. A row matrix. Now next comes, so there are few examples over here that you can go for. So as if the first example is the one only, in which there is only one row and one column, and such kind of matrix is also known as row matrix. And this is a very special matrix. It's because जैसे अपन ये column matrix पढ़ लेंगे ना, तब आपको ये पता चलेगा कि why it is a special matrix. Okay, I will not jinx it now. Just let me keep it a secret now. Suspense type. Anyways, so these over here has 5 rows, 1 2 3 4 5, but a single row 8 9 5 6 7. So a matrix in which there is only one row and n number of columns is known as row matrix. Now the second type of matrix is column matrix. What column matrix is? A matrix in which there is only one column. A matrix in which there is only one column. Such type of matrix is known as column matrix, as in A11, A21, A31, and I won't write it A31 because I want to write in this way, AM1. Now you can see over here that the very basic difference was यहाँ पे 1 remains constant. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए. Whereas over here you can see 1 यहाँ पे constant रह रहा है throughout. mth एलिमेंट के लिए और nth एलिमेंट के लिए रो में 1 कांस्टेंट था, तो mth एलिमेंट के लिए कॉलम कांस्टेंट था. Such kind of matrices are known as column matrix in which there is only one column. And here is one example, basically not few, जिसमें there are 6 rows but only one column. As you can see, 6 by 1. Let me just erase one number, then it is 5 by 1. Because यहाँ पे 1 2 3 4 and here 5वां. Do not forget to draw your matrix in such a way that कि उसमें के सारे numbers cover हो रहे हैं. Okay, so first, second, third, fourth and fifth. 5 rows, but only one column is there. Such kind of matrix is known as column matrix. And over here, the speciality and such a uniqueness was that this is a row matrix as well as column matrix. Because यहाँ पे row भी 1 है और column भी 1 है. A matrix in which there is only one column is known as column matrix. A matrix in which there is only one row is known as row matrix. So yes, this is what the speciality is. So like if I have this is also row and column matrix. If I have this is also row and column matrix, both. So you cannot distinguish that is row matrix or column matrix. No, you can't. But still, I'll have this same example written over here. It won't affect. It really won't. Okay. Anyways, now comes next for you is the zero matrix. So what zero matrix is in this form? Let me just write it in this way. Okay. Whoa. Every element of your matrix is 0. What is the order? Sorry. A matrix in which all your rows and all your columns are 0. Such kind of matrix is known as zero matrix. A matrix in which rows and columns are consisting of only zeros are known as zero matrix. Next comes, or you can say, but इधर पता है, the order doesn't matter. The very one thing is,
that since there is no element present, you cannot distinguish that कितने rows और कितने columns है, but just so we are representing it, so we'll keep the track of order also, but it's not mandatory to write the order also while you have a zero matrix, because हर एक चीज तो है ही ना वहाँ पे, so कुछ मतलब ही नहीं बनता जब there is nothing, so you don't have any order also. So yeah, okay, anyways, so now next comes the square and rectangular matrix. What square and rectangular matrix is nothing but what do you mean by square? So यहाँ पे ये एक square है, इसका मतलब हो गया all these are equal, whereas in rectangle these two are equal and these two are equal. Exactly, मतलब क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलने के बाद में रोज, अब यहाँ पे क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मैट्रिक्स, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मैट्रिक्स, वी विल बी टॉकिंग अबाउट रोज एंड कॉलम्स, वी विल बी टॉकिंग अबाउट रोज एंड कॉलम्स. एग्जैक्टली, एंड नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रोज एंड कॉलम्स, स्क्वायर की जब बात आती है तो इसका मतलब क्या होता है, हर एक चीज उसमें सेम है. इसका मतलब क्या, रो और कॉलम दोनों भी सेम होंगे. मतलब व्हेन यू हैव अ मैट्रिक्स इन दिस फॉर्म m, और n by n, m by m और n by m, और राइट मी जस्ट टेक अ एग्जांपल जिससे आपको एकदम क्लियरली हिंट लग जाए. 2 by 2 का मैट्रिक्स है, सो इट्स जस्ट 1 1 2 2. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें यू हैव 2 rows and 2 columns only is known as square matrix, whereas the matrix in which you have let's just say 2 rows but 3 columns, 2 row but 3 columns, so 2 row and 3 column is what, 1 0 1 2 0 2. It's just an example, random example. रेक्टेंगल में क्या हो रहा था, 2 चीज सेम रह रही थी और ये 2 चीज सेम रह रही थी. मतलब क्या, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं 4 में से 2 तो सेम रहेंगी और 2 डिफरेंट रहेंगी. इसका मतलब अगर मेरे को बोलने का है, इसका मतलब अगर मेरे को बोलने का ही है आपको एक चीज, तो मैं आपको ऐसा एक बात बता दूं कि कंसिडर करते हैं 2 ही क्वांटिटी को, और 2 में से कंसिडर करते हैं 2 ही क्वांटिटी को, जैसे ये साइड को कंसिडर किया और ये साइड को कंसिडर किया. एक छोटा है तो एक बड़ा है. अब जब भी कभी इनइक्वालिटी आ जाता है छोटे बड़े का, there comes the rectangle. और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक तो रो छोटा रहेगा और कॉलम बड़ा रहेगा, या तो कॉलम बड़ा छोटा और रो बड़ा, कॉलम छोटा और रो बड़ा, ऐसे काइंड ऑफ मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. सो ओवर हियर यस यू कैन से दैट दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एंड ओवर हियर you can very well say that this is a square matrix but this is a rectangular matrix. Okay, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, सच मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स. बट एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर अनइक्वल, दैट काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज rectangular matrix. So in general if I have to write then it will be in this form. Let me just draw it. Okay, so a11 up to a1n, this is a n1 up to ann, n by n का मैट्रिक्स है. इसलिए यहाँ पे n आएगा और यहाँ पे भी n आएगा. मतलब क्यों, क्योंकि ये कॉलम को डिनोट करता है, तो जितने रो रहेंगे उतने ही कॉलम रहेंगे. सो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे दे शुड बी सेम. जैसे कि यहाँ पे देखो ये सेम है ना, जैसे मतलब मेरे को अगर बोलने का तो ये A12 है तो ये A21 ही है. सो वैसे ही यहाँ पे अगर n से खत्म हो रहा है तो यहाँ पे भी n से ही शुरुआत होना चाहिए, और यहाँ पे भी n से n पे खत्म हो जाना चाहिए. सो सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स, whereas the rectangular matrix is in this form. मैंने रेक्टेंगुलर के फॉर्म में लिखा उसको जानबूझ के, a1n amn where ऑर्डर इज m by n, और इसमें मैं कंडीशन लिख लेता हूं where m is not equal to n. जब भी ऐसा हो गया m is not equal to n, इसका मतलब कि अब ये फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा. इसका मतलब
either m is bigger than n or n is bigger than m, vice versa. And this is what your square and rectangular matrix is. So let's just move on to the next type of matrix. It's very simple, it's very basic, it's really very basic kind of matrix that you have to understand. डायगोनल मैट्रिक्स पहले सीख ले, फिर बाद में ये देख लेते हैं. स्केलर मैट्रिक्स है नहीं, नेक्स्ट यूनिट मैट्रिक्स भी है. हाँ, ओके. वन थिंग दैट आई वांट टू से इज दैट दिस मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, इज ऑल्सो known as null matrix, is also known as null matrix. Now comes our diagonal matrix. Diagonal matrix कहाँ है? diagonal matrix, yes, पहले इसको कर लेते हैं अपन. diagonal matrix, a matrix, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें अभी मेरे को सबसे पहले बताओ तो एक मिनट, लेट मी जस्ट आस्क यू वन थिंग. What diagonal means? ये, this is what diagonal is exactly. अब यहां पे अगर आप नोटिस करोगे, I don't want the sign, वो साइन कैसे भी रहे. मेरे को यहां पे बताओ डायगोनल एलिमेंट्स कौन से. Well, diagonal elements are 1, 8, 0. एक प्रकार ये हो गया. बट यहां पे से भी अगर आप डायगोनल एलिमेंट लोगे तो इट इज अगेन 1, 8, 0 एग्जैक्टली. सो डायगोनल एलिमेंट्स मतलब वो एलिमेंट्स जो डायगोनली प्रेजेंट है मैट्रिक्स में, दोज आर नोन एज डायगोनल एलिमेंट्स. नाउ व्हाट आई वांट यू टू सी इज व्हाट डायगोनल मैट्रिक्स इज. एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स. सो लेट मी जस्ट टेक अ स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 के फॉर्म का. Okay, and over here I have 1. Let me just take 0. 3x3 है क्या? 4x4 हो जाएगा. 1, 2, 3, 4. 4x4 कर लेते हैं इसको. 1, 0 and 0. Then comes 0, 1, 0, 0. 1 ही नहीं रह सकता तो 2 भी. 0, 3, 0. सॉरी, डायगोनल चाहिए ना. 0, 3, 0. Give me 1 second, please. हाँ. And finally 4. Okay, sorry. अब यहां पे अगर आप देखोगे इधर वे, मतलब ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ यही साइड का आपका मैट्रिक्स कंसिडर किया जाएगा डायगोनल में. हाँ, इट कैन बी इन दिस, ये फॉर्म में भी रह सकता है, ये फॉर्म में भी रह सकता है, बट अपन ने वैसा नहीं लिया है. आप वैसा ले सकते हो. मेरे को बोलने का क्या है कि द मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली डायगोनल एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स में सिर्फ जब डायगोनल एलिमेंट्स रहते हैं वो मैट्रिक्स को बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स. रेस्ट आर ऑल जीरो, रेस्ट आर ऑल जीरो. और ये पॉसिबल ही तब होता है जब वो मैट्रिक्स कैसी हो, जब वो मैट्रिक्स कैसी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जब वो कैसी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो. और इसको एक और तरीका होता है लिखने का, एक और तरीका होता है, आई विल जस्ट इरेज दिस, एक और तरीका होता है इसको लिखने का, एंड द तरीका इज डायगोनल का डायग, एंड वी जस्ट राइट द एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4. दैट इज वी डोंट राइट द ऑर्डर ओवर हियर, नथिंग, कुछ भी नहीं. इट्स जस्ट डायगोनल, डायग लिख देंगे. डायग रिप्रेजेंट्स द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. और ये इसका ही मतलब ये होता है, इट्स जस्ट कि बाकी सारे एलिमेंट्स आर जीरो. सो आज के सेशन के लिए इतना ही. द रेस्ट वी विल कवर अप इन द नेक्स्ट सेशन. आई वुड सजेस्ट कि तुम एक बार वापस अपने खुद से एक एग्जाम्पल बनाओ और अपने रजिस्टर्स में नोट डाउन करो खुद के एग्जाम्पल्स, एक योर ओन, ताकि और कॉन्सेप्ट की और क्लैरिटी आ जाए. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस. थैंक यू.